Hi guys, friends, buddies and followers. Here I am, Prasanta Mehtani of Easy Learning Classes, Bandra West, and I once again begin a course which is close to my heart and has always been since I've started teaching English. I have made it the habit of writing quotes, thoughts and visions. I express myself a lot, as I've already mentioned, and I have got so much of your love, adulation, praises and such a lovely welcome through the platform of an academy that I would like to share my beautiful experiences with all of you all. And please be more loving and adaptable even to me this time. So I start my new course with your blessings and your good wishes. And the name of this course is My Quotes, My Thoughts, My Vision. मेरी सोच, मेरे ख्याल, मेरी नज़रिया. To learn English with expressions that storm my heart all the day in profusion. So why let them fade away as illusions? Rather share them with you all and make each and every one a part of even my wits infusion. To learn, अभी interpretation इसका ऐसा जाएगा, to learn English with expressions that storm my heart. तो अंग्रेज़ी कैसे लर्न की जाती है? एक्सप्रेशन, जो हमारे दिल में बातें होती है, वो पूरा दिन दिल में अलग अलग किस्म की बातें होती है, आती है. प्रोफ्यूजन मतलब बहुत अधिकतर मात्रा में. सो वाई लेट देम फेड अवे एज इल्यूजन्स. तो उन्हें क्यों ऐसे ही फेड होना, गायब हो जाना. इल्यूजन मतलब अपना भ्रम, अपने दिमाग का फितूर. रादर शेयर देम विथ यू ऑल एंड मेक ईच एंड एवरी वन अ पार्ट ऑफ माई विट्स इन्फ्यूजन. तो मेरे दिमाग में क्या क्या चलता है वो सब आप सबको पता होना चाहिए, क्योंकि आप सब मेरे अपने हो और आपकी ग्रोथ में ही मेरी ग्रोथ है. एंड द फर्स्ट कोट ऑफ द डे इज, पहला कोट ये है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग. Seeds of hope and pragmatism they start sowing, believing the derelictions, afflictions, inflictions and maledictions will themselves start slowing, ushering 2017 with the vision that all our aspirations and affiliations will keep us really glowing and even mind-blowing. So when the going gets tough, the tough get going का मतलब होता है जब मुश्किलें बढ़ जाती है तो आदमी और मजबूत हो जाता है. सीड्स ऑफ होप तो आप सबको मालूम है. एंड प्रेगमेटिज्म इज प्रैक्टिकलिटी, ज़्यादा प्रैक्टिकल होना चाहिए. दे स्टार्ट शोइंग, जज्बाती कम. बिलीविंग द डेरिलिक्शंस का मतलब वाहियात काम, बेकार काम, नेग्लिजेंट काम, बिल्कुल अनमना काम. एफ्लिक्शंस मतलब दुविधा, पीड़ा, बहुत तकलीफ में होना. इन्फ्लिक्शन मतलब आपके ऊपर कोई रोक टोक, घाव, चाबुक लोके खड़ा है, ज़बरदस्ती करवाई जा रही है. एंड मैल एडिक्शंस मतलब कर्सेस, बद्दुआ है, कोई इविल स्पिरिट है जो हमको आगे नहीं. विल देमसेल्व्स, ये सब जो बुरा वक्त है, विल देमसेल्व्स स्टार्ट स्लोइंग. अशरिंग मीन्स प्यार से ले आना. 2017 with a vision that all our aspirations and affiliations will keep us really glowing in mind. Aspirations होती है हमारे desires, हमारी मनोकामनाएं, हमारे ख्वाब. and affiliation हमारा जुड़ाव, हमारे संबंध, उस सब और हमें ग्लो कराएंगे और माइंड ब्लोइंग होगा. साल बहुत ही अच्छा होगा. आप सब चिंता मत कीजिए, हम सब साथ साथ हैं. And don't wait for a change, but be the change. This is the second quote. Sorry, once again I'll start. This is the second quote, guys. Don't wait for a change, but be the change. Similarly, don't wait for the good, but be the good that you indefatigably should, without procrastinating or engaging into banal talk of good or would. Then only predominantly what's life you really understood. Trust me, sanguine living is not a fantasy. It's reality that's truly palpable. Don't wait for the change. आप बदलाव के लिए रुकिए मत, आप खुद वो बदलाव बन जाइए. ये मत बोलिए, और वो बदलाव आप खुद बन जाइए. आप, और वो भी ऐसी स्पिरिट के साथ जो थके नहीं. एंड indefatigably मीन्स न थकने वाली, अनटायरिंग, फटीग ही ना आए आपको. विदाउट प्रोक्रेस्टिनेटिंग मतलब ज़बरदस्ती डिले करना, ज़बरदस्ती काम धीरे धीरे करना. जैसे सरकारी मुलाजिम
सरकारी ऑफिस में होता है, काम बहुत धीरे धीरे से ज़बरदस्ती किया जाता है। और इंगेजिंग इनटू बेनल टॉक, खाली फोकट की बोरिंग बातें मत कीजिए कि हमें ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, सीधा करना चालू कीजिए। एंड देन ओनली प्रीडोमिनेंटली मतलब मेनली, इम्पोर्टेंटली मतलब पाइवोटली, प्रीडोमिनेंटली मतलब अच्छे रूप से, डोमिनेटिंग मुख्य रूप से आपने जिंदगी और जिंदगी का सही मतलब समझा है। ट्रस्ट मी, सैंग्विन लिविंग, अभी सैंग्विन का मतलब होता है जो पॉजिटिव हैं, जो होपफुल है, आप पॉजिटिव रहें, आप होपफुल रहे। लिविंग इज़ नॉट अ फैंटेसी, फैंटेसी मतलब काल्पना नहीं है। अच्छी ज़िंदगी, कामयाब ज़िंदगी, होपफुल ज़िंदगी एक फैंटेसी नहीं है, ये ट्रूली पैल्पेबल मतलब फीलेबल, पैल्पेबल मतलब महसूस होने वाली चीज़ है। वो सब हमारे सपने साकार हो सकते हैं अगर हम बदलाव के लिए रुके ना, हम खुद ही बदलाव बन जाएं और खुद ही कुड वुड के चक्कर में ना पड़ें और बदलना चालू कर दें। अभी द लास्ट कोट इज रियली इनटू डायनामिज्म, टीचिंग डायनामिज्म। अकॉर्डिंग टू मी, व्हाट इज टीचिंग? Teaching is not about didactic or pedantic talk. It's all about connecting to the learner's or listener's thought and breaking down his resilience without a mock or a shock. Then, by delivering an impromptu onslaught, leaving him thirsty and craving for more, even without an afterthought. In short, teaching is not your brilliance displayed, but seeing to it that a real learner's brilliance portrays, outplays, and even stays. So, टीचिंग यानी शिक्षा एक डायडैक्टिक डिक्टेटर के जैसे मार के या छड़ी या इम्पोज करके नहीं, डायडैक्टिक मतलब डिक्टेटर की भांति नहीं की जा सकती, या पेडांटिक टॉक मतलब बुक टू बुक, वर्ड टू वर्ड, और बिल्कुल गलती चूक नहीं होनी चाहिए। पूरा किताबी ज्ञान, पूरा किताब तोड़ के पढ़ाना है। इट्स अबाउट कनेक्टिंग टू द लर्नर्स और लिसनर्स थॉट। आपको उसकी लर्नर की भांति, लर्नर की सोच में घुसना पड़ेगा और उसका जो पढ़ाई के प्रति एक रुकाव है, एक रेजिलियंस है कि मुझे पढ़ाई अच्छी नहीं लगती, विदाउट अ मॉक। और वो जो पहले की सोच का है और जो पढ़ाई को बिल्कुल वैसे ही पढ़ना चाहता है, उस प्रक्रिया को मॉक नहीं करना चाहिए, उसका टीज नहीं करना चाहिए, उसका मुंह नहीं बनाना चाहिए, उसको शॉक नहीं करना चाहिए। देन बाय डिलीवरिंग एन इम्प्रॉम्प्टू बिना तैयारी के आप उसको इतना अच्छा ज्ञान, इतनी अच्छी ऑनस्लॉट मीन्स कंटिन्यूस, आप उसको ज्ञान इतना अच्छा सुनाइए कि वह थर्स्टी हो जाए, उसके अंदर प्यास जागे ज्ञान पाने की। इवन और वो बिना कुछ सोचे समझे बोले अभी तो मुझे ज्ञान और भी पाना है क्योंकि ज्ञान बड़ा मज़ेदार है। इन शॉर्ट टीचिंग इज़ नॉट कि आप अपनी बड़बड़ करते जाएं बिना उस स्टूडेंट के वो हुए प्रभावित हुए, बट सीइंग टू इट दैट द लर्नर्स ब्रिलियंस, सीखने वाले की जो बढ़ियापन है उसको निखारूं, उसको उभारूं, उसको ऊपर लाऊं, क्योंकि वो अपने लिए आता है। आप क्या है वो जानता है। तो यही मेरे लिए शिक्षा है, यही मेरे लिए उसका प्रमाण है और यही मैं चाहती हूँ। And thank you so much for being so loving, so cooperative and so generous. Please continue your good wishes. This is a new thought process. ये एक नया सोच है, नई प्रक्रिया से मैं इंग्लिश सिखाना चाहती हूँ और आशा है कि आप अभी भी मुझे उतना ही प्यार देंगे और करेंगे ताकि यह मेरी सोच सफल हो और आप सभी मुझे उतना ही प्यार देंगे। Thank you so much for giving me so much love. I'm really proud of you. Love you all the way you all love me. Thank you once again.